Babe, Yeah, babe. how do you think two people can remain friends for a long period of time? I think two people can remain friends for a long time if they're both from GK. No, seriously, I think every friendship requires a bit of a give and take. Yeah, so you give, I take. शोर भाया चलिए मेरा सेट लगा दीजिए. I'm Sadhika. I'm Radhika. मैंने तेरे को बुरी हरकतों से, लोगों से और चीजों से बचाया है. और मैंने तेरे को बुरी नजर से बचाया है. हाँ. और तू काला टीका है मेरा. I'm very racist. Fucking racist. Joke. Today's episode is really special. Because we're going to talk about friendships. And we have been best friends for 15 years. Yes, 15 years and counting. Yes. Okay, so first tell me, what do friendships mean to you? Everything. एवरीथिंग. जब लाइफ में कुछ नहीं था तो दोस्ती थी, और शायद मैंने जो भी किया है लाइफ में वो दोस्तों के लिए ही किया है, टू द पॉइंट दैट यू नो जैसे सबकी फैमिली करती है. माई फैमिली इज ऑल्सो बिन लाइक इसके तो सब कुछ इसके दोस्त ही है. And you know, I've been taunted for always prioritizing my friends over everybody else, to the point that it has also hampered my relationships. एंड पता है बहुत सारे लोग जब ऐसी बातें करते हैं फ्रेंडशिप्स के बारे में तो एक दूसरा ओपिनियन ये वाली चीज़ होती है कि यार ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ मूवीज़ में होता है, ये सिर्फ इसमें दिखता है, उसमें दिखता है. यू नो मतलब आई एम हियर टू वाउच फॉर द फैक्ट कि सिर्फ मूवीज़ वाली चीज़ नहीं है. अगर मूवीज़ इंस्पायर होती हैं तो वो ऐसी दोस्ती से होती है, क्योंकि ऑफकोर्स जब बच्चे थे तब फ्रेंडशिप्स या तब फ्रेंड्स बनाने शुरू करे थे तो बहुत डिफरेंट होता था. तब होता था कि लंच शेयर कर लिया, क्लास में साथ बैठ गए, होमवर्क डिस्कस कर लिया, खेलने साथ चले गए, राइट. बट बड़े होते होते तुम्हें रियलाइज होता है कि इवेंचुअली ना वो एक कांस्टेंट, वो कहते हैं ना कि लाइफ में हमेशा एक वो पोल स्टार होना चाहिए, एक नॉर्थ होना चाहिए तुम्हारा, कि हु शोज यू व्हाट द नॉर्थ इज. आई फील लाइक फ्रेंडशिप्स टू मी आर दैट. दे आर दैट वन कॉन्स्टेंट थिंग के आसपास सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, सारा डायनामिक चेंज हो सकता है, बट वो दोस्ती वो ना वो कॉन्स्टेंट रहती है. Friendship is what gives you that space to be yourself. Like I know for a fact that जितनी तू खुली हुई मेरे साथ है तो किसी के साथ नहीं है, right? You have a certain way of interacting with the entire world. Sometimes even your family, but you are totally unabashedly yourself with me. And frankly, I don't know what I would do without you. Or I do have other very good friends. I have 2 more best friends. You have 2 more best friends. And frankly, life ना होती यार उनके बिना, हम सब के बिना. What makes a friendship last? So the list is very long, but I would like to start with 2 rules of thumb. Okay. Right? One is मेरी बहन का लड़का मेरा भाई. You do not fuck with your friendships like that. And there's this colleague, she's not a colleague anymore. She was like a little sister to me, and she told me this story, like it was her personal experience, that she lost her boyfriend to her best friend. सबसे बुरा दर्द लाइफ में अगर कोई है. It broke my heart, Sadhika. It broke my heart to know that ऐसी भी दोस्तियाँ होती है. और ये मतलब I can't imagine somebody's pain, you know, when they have to go through something like this. 2 people you love the most, जिनमें आपने कन्फाइड किया हुआ, जिनके हाथों में आपने अपना दिल रखा हुआ है, वो दोनों आपको धोखा दे जाए. It is a pain that I wish upon no one. Not even my enemies. I don't have any. At least I don't hate anybody. Second is be very clear about money. I think nothing ruins a relationship. Friendship is also a relationship. Than money. Nothing. I feel like ये सबसे घटिया लड़ाइयाँ पैसे के नाम पे हो सकती है. पैसे के चक्कर में. और people don't talk about it enough, right? Because nobody wants to talk about money. Oh my God, right? But पैसे के पीछे ही सब कुछ हो रहा है. पैसे के पीछे भाई लड़ जाते हैं, सब कुछ होता है. So अपनी दोस्ती जितनी लंबी चलानी है उतनी ही क्लियर अपनी डीलिंग्स में रहो. हिसाब अपना पक्का रखो. लड़कों में मुझे लगता है एक हद तक फिर भी इतना हिसाब नहीं रखते. लड़कियाँ आर स्टिल पर्टिकुलर अबाउट इट, आई वुड से, इन एटलीस्ट इन माई एक्सपीरियंस. एंड प्यार में कोई आपको एक बारी जाने देगा, 2 बारी जाने देगा, तीसरी बारी जाने देगा. इवेंचुअली it will become a problem in your friendship, and you know they'll stop going out with you, or they'll start making plans that do not involve money, right? Unless आप इतने comfortable हो कि money is not an issue. बट फिर दोनों पार्टी सेम लेवल पे होनी चाहिए, राइट? जब फ्रेंडशिप ऐसे डायनामिक में होती है
कि या तो एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि उसने कहाँ पे पैसे दे के भूल गया, ये हो गया, उसको लॉस भी हो गया, वो बैड डेट समझ लेगा और दोस्ती चलती रहेगी, रिश्ता चलता रहेगा। बट जहाँ पे दोनों, फॉर एग्जाम्पल जब टीनेज ईयर्स में होती है, जब बड़े हो रहे होते हैं, नई नई नौकरी वोकरी लगी है, उस टाइम पे जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना, मेरे को लगता है कि सबसे जल्दी खटास वहाँ पे आती है एक दोस्ती में। Absolutely. बट पता है इन दोनों से पहले व्हाट आई फील लाइक अल्टीमेटली मेक्स फ्रेंडशिप लास्ट इज दैट फैक्ट के प्यार वाले रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस होती हैं। दोस्ती एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ मेरे को लगता है कि सबसे कम एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और वो कम एक्सपेक्टेशंस का बर्डन हेल्प्स यू लास्ट दैट कोर्स। आई थिंक दोस्ती के लेवल पर डिपेंड करता है। आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ यू, राइट? तो ऐसी बात नहीं, एक्सपेक्टेशन ज़रूर होते हैं, कम डेफिनेटली होती है। दैट इज़ द रीज़न फ्रेंडशिप्स आर मोर सक्सेसफुल दैन रोमांटिक रिलेशनशिप्स। और सिर्फ मूवी में नहीं होता, जिन्होंने देखा है बहुत कम लोग होते हैं। प्यार भी ऐसे बहुत लोग, प्यार के लिए भी हम सेम बोलते हैं। टू अस लव, ट्रू लव इज़ समथिंग दैट वी हैव ओनली सीन इन द मूवीज़, जो सिर्फ करण जौहर और यश चोपड़ा की मूवीज़ में होता है और रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। बट देर आर पीपल हु विटनेस्ड एंड हु एक्सपीरियंस दैट लव, हु आर लिविंग दैट काइंड ऑफ अ लव स्टोरी। एंड आई हैव लिव्ड दोज काइंड ऑफ फ्रेंडशिप्स। सोनू की टीटू की स्वीटी वाली दोस्ती सिर्फ उस मूवी में नहीं है, इट एग्जिस्ट इन रियल टाइम। बट quoting that movie, I would say that is another thing to learn from it to make friendships last is, हो सकता है कि आपका दोस्त वाकई में ही आपको इतना प्यार करता हो कि वो किसी को भी छोड़ दे आपके लिए, बट आप वो कंट्रोल नहीं ले सकते। एज अ फ्रेंड यू शुड नेवर पुट योर फ्रेंड इन दैट पोजिशन वेयर दे हैव टू चूज यू ओवर समबडी एल्स, बिकॉज इवन इफ दे चूज यू, they will resent you for the rest of their lives. For the rest of their lives. You will always let them be in control of the decisions of their life. Decision making should never be in your hand, especially in matters of their life. So while it looked really good in the movie that friend के पास कोई choice नहीं बची, तो उसने उसको ये या तो मैं या तो ये, हाँ. So because I have been in that situation, right? And as much as I wanted to pull Sonu on my T2, I didn't, because that is your decision to make. और जितनी मर्जी दोस्ती हो, जितना मर्जी हक है मेरा तुझ पे, it is not my decision to make. And second, I knew this for a fact that you will resent me for the rest of your life. You probably wouldn't after a point, but वो गांठ एक आ जाती है और वो नहीं जाती। यार देखो पता है लड़कों की दोस्ती, और ये मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है कि मेल फ्रेंडशिप्स क्या होती हैं, आपके लिए दोस्ती क्या है, और ये रिकॉर्ड पे है कि लड़कों की दोस्ती ज़्यादा लास्ट करती है या फिर ज़्यादा दिखती है एंड तक। लड़कों की दोस्ती होती है कि चल कोई बात नहीं, खुद तेरे को 2 ठोड लगेंगे तो तेरे को लाइफ में समझ आ जाएगी, और तब के लिए हम हैं, अभी भी हम हैं और तब भी हम हैं। लड़कियों की ना बहुत प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट आ जाता है कहीं से कि नहीं मेरे को इसको प्रोटेक्ट करना है, मेरे को इसको ये करना है, और कहीं ना वो प्रोटेक्शन और कंट्रोल के बीच की ना लाइन ब्लोर हो जाती है। विच इज़ वाई मेरे को लगता है कि सोनू की टीटू की स्वीटी में जो फ्रेंडशिप ग्लोरीफाई करी है ना उन दोनों दोस्तों की, मेरे को वो टॉक्सिक है। आई एग्री। मतलब यार इसमें कोई प्राइड लेने वाली बात नहीं है कि तुमने अपने दोस्त को वो कर दिया कि तू शादी के मंडप से उठ के, शादी का मंडप है, मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि इस लड़की को छोड़ दे। क्यों? कोई रीजन? क्या रीजन था? उसको पहले लग रहा था कि लड़की इतनी अच्छी तो नहीं हो सकती। एक तो मेरे को ये चीज समझ आती, the fact that he never truly found a reason. हाँ, and there was no reason, just a hunch, and after a hunch it became an ego tussle. Yes, ego tussle पे तूने अपने I'll show you your place ना, मैं तेरे को तेरी औकात दिखाऊंगा कि मैं मैटर, तू आ जाइए, मैं कब का आया हूँ। Firstly you have to take that out of your friendship. आधी दोस्तियां इसलिए टूटती हैं क्योंकि जब तीसरा इंसान आ जाता है, जो पार्टनर होता है या कोई भी होता है, तो वो कंपटीशन फील करने लग जाता है, और वो दोस्त की भी जगह होती है यार कि उस बंदे को कंपटीशन ना फील करवाओ। तुम्हारी जगह है, 15 साल से तुम्हारी जगह है, हमेशा रहेगी। अगले इंसान अभी नया डायनामिक में आया है, इट इज ऑन यू टू मेक दैट पर्सन फील कंफर्टेबल, सेफ, टू अलाउ देम दैट प्रिवेसी ऑल्सो, राइट, बट टू ऑल्सो रिटेन योर राइट इन अ फ्रेंडशिप। सो आई थिंक ये एक्सपेक्टेशंस वाली मेरे को जेन्युइनली लगती है कि जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन एक फ्रेंडशिप पे डालते हैं ना, उतनी जल्दी वो चीज़ क्रम्बल हो जाती है। और दूसरी मेरे को लगता है कि यू हैव टू लर्न टू लेट गो। आई वाज गोना से the same fucking thing. The only way to sustain a friendship is to learn the art of letting go. Much like any other relationship, दोस्ती आपका बहुत दिल दुखाती है. There will be those times which will break your heart, right? If you don't let that go, the friendship stays, but it's never the same. Case in point, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, right? Hrithik Roshan was hurt over something, and rightly so, right? हाँ, सेम सिचुएशन हुई थी कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका बेस्ट फ्रेंड, मतलब नॉट अ कूल थिंग फॉर अ फ्रेंड टू पुल ऑफ। और कितने टाइम तक, लाइक
कोई भी ना इतने साल की दोस्ती मिनट में नहीं खत्म करता, बट वो गिले शिकवे रह जाते हैं और वो ऐसे रहते हैं कि दोस्ती कभी सेम नहीं होती. फर्स्ट इज लेटिंग गो, बट स्पीकिंग ऑफ द अदर पार्टी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट you've hurt your friend, how much you've hurt them, and truly feeling sorry for what you've done and making sure you never do it again. Right? So that is also very important. First is like एक फ्रेंडशिप में ना you have to know how to put yourself in the other person's shoes. किसी यार, relationship इसको इतना बुरा लग रहा है, इसका दिल इतना दुखा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों दुखा है, बट मैं समझने की कोशिश तो करूँ कि क्यों दुखा होगा. और अगर मेरे को समझ में आ रहा है कि मैंने दुखाया है तो उसके लिए माफ़ी मांगना और दिल से माफ़ी मांगना, दैट इज़ द ओनली वे टू कीप फ्रेंडशिप्स. जब तक यहाँ से ना निकले ना तब तक नहीं. एंड आई अग्री विद दैट, एंड आई ऑल्सो फील कि पता है बहुत सारी ना चीज़ें ऐसे कॉम्प्लेक्स होती हैं, जबकि कहते हैं कि फ्रेंडशिप सबसे सिंपल रिलेशनशिप होता है, राइट? कि तुमने चूज किया है उस इंसान के साथ रहना और वो हाँ, और वो फैमिली वाली ऑब्लिगेशन नहीं है, बट फैमिली वाला प्यार है. बट एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत चीज़ें ना लोग कहते हैं कि नॉर्मलाइज कर दो दोस्ती में. क्या चल दोस्ती में क्या बुरा मानना, दोस्ती में ठीक है बुरा नहीं मानना, बट अगर बुरा लग गया तो बात तो करो उसके बारे में. See, that is साल निकल जाते हैं और तुम उस बारे में बात नहीं करते क्योंकि यू फील अनकंफर्टेबल अबाउट इट. बट तो क्या हो गया यार अगर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा जल्दी दोस्ती उस पॉइंट पे टूटती है where you try to brush it under the carpet. Absolutely. So letting go का मतलब ये नहीं है कि आप बात ही मत करो. Confrontation is a very very important part of any friendship, and मुझे लगता है कि जो लोग आपने दिल से चूज किए, जो आपकी खुद की बनाई हुई फैमिली है, अगर वहाँ पर आप दिल खोल के बात नहीं कर सकते तो लाना तैयार है ऐसी दोस्ती पे. So सबसे पहले communication, communicate what you're feeling. The other person should understand what you're trying to communicate. So comprehension after communication. तूने मेरे को अपनी बात समझाई, मैंने तेरी बात समझी, साथ में अपनी समझाई, तूने मेरी समझी, और उसके बाद अब जाने दो. हाँ, अब जाने दो. और जाने दो. फिर उस चीज़ को, वो टॉन्ट वाली चीज़ जहाँ पे आ जाती है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है. चल, ये तो वो वाली चीज़ है दैट यू नो दिस मेक्स अ फ्रेंडशिप लास्ट. व्हाट डू यू थिंक मेक्स अ फ्रेंडशिप ब्रेक? कंपटीशन. जहाँ पर दोस्ती में कंपटीशन आ जाता है वहाँ वो दोस्ती खत्म हो जाती है, या फिर वो फेक रह जाएगी. इट विल बी सोशल मीडिया फ्रेंडशिप. वी इनवाइट ईच अदर टू बर्थडे पार्टीज, वी पोस्ट पिक्चर्स फॉर ईच अदर, एक स्टोरी डालते हैं, रीपोस्ट करते हैं, दुनिया के आगे दोस्त दिख रहे हैं, बट वो सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन आ जाता है तो द एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप इज लॉस्ट. एंड आई हैव बीन इन सिचुएशंस जहाँ पर my own best friend started to resent me because she always felt that she was in competition with me, and she thought that I was this control freak always trying to call the shots, and eventually वो नहीं लास्ट करती. So one is competition, the other is, see, usually friends are of the same age, नहीं तो same age group, right? And सबकी अलग अलग trajectory होती है, right? Some people succeed quicker, right? And some people take longer to succeed. Jealousy, one thing that breaks a friendship. You have to learn to rejoice in the success of your friends. Yeah. That is very very important, to be able to be happy for them without any jealousy, to be clap when they are winning. It's very important. एंड पता है लोगों को लगता है कि ये चीज़ ना अंदर से बहुत नेचुरली आती है. नहीं आती यार नेचुरली. तुम नेचुरली कैसे अपने दोस्त के लिए खुश फील कर सकते हो जब वो सक्सेस की लैडर क्लाइम कर रहा है, जब तुम खुद स्ट्रगल कर रहे हो, जब तुम्हारे बैंक अकाउंट में उतना पैसा नहीं कि तुम एक नॉर्मल सी आउटिंग पे बाहर जा पाओ, और तुम देख रहे हो वहाँ पे दूसरा बंदा चाहे प्यार में ही कह रहा है कि कोई बात नहीं यार, तू बस चल, तेरी सिर्फ कंपनी मैटर करती है, मैं बिल पे करूंगा. जो दिल दुखता है यार. तो वो नेचुरल नहीं है, वो इंस्टिंक्ट अपने मन में आना खुशी होने का. बट लाइक यू सेड, यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू कॉन्स्टेंटली टेल योरसेल्फ, right? Because I have been in that situation where I had 3 very close friends. All of them are doing fantastic, in their lives, in their careers. And, somehow my trajectory was such that I was a little left behind, right? And I had to constantly remind myself, fuck yaar, bhencho, these are the people I love, right? इनसे थोड़ी जेलसी करूँगी. हम स्ट्रेंजर्स के लिए कुछ नहीं रखते अपने मन में, तो ये तो मेरे दोस्त है यार, ये मेरे जिगरी है, इनके लिए नहीं खुश हुई तो फिर दोस्ती किस काम की. सही बात है. और मैं कोई पॉडकास्ट देख रही थी. उस पॉडकास्ट में ना एक इंसान दूसरे से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता लगता है कि कोई तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, कैसे तुम जज करते हो? क्योंकि आजकल का ज़माना तो ऐसा है कि एक पार्टी में 2 बार टकर गए और एक फ़ोटो डाल दी साथ में और एक दूसरे को सोशल मीडिया पे फॉलो कर लिया, इंस्टाग्राम पे, तो दोस्त बुला लिया. बट दोस्त नहीं होते भाई. सोशल अक्वेंटेंस और दोस्त में बहुत बड़ा फ़र्क होता है जो लोग भूल चुके हैं. हर दूसरा बंदा तुम्हारा दोस्त है. तो उस पॉडकास्ट में जब उस बंदे ने पूछा कि व्हाट इज़ फ्रेंडशिप टू यू, तो या फिर हाउ डू यू जज कि दिस पर्सन इज़ अ फ्रेंड, और उसने बहुत पते की बात बोली. उसने बोला कि यार यू डोंट नो हु योर फ्रेंड इज़
unless your friendship is tested. Yes. कौन था तुम्हारा दोस्त जब तुम्हारा दोस्त बनना अनकंफर्टेबल था, जब तुम्हारा दोस्त रहना रिस्की था, जब तुम्हारा दोस्त रहना प्रॉब्लमैटिक था, दूसरे लोगों को समझ नहीं आता था, तब तुम्हारे साथ कौन खड़ा था? वो है तुम्हारा दोस्त. वो तुम्हारा दोस्त नहीं है जब तुम्हारी बर्थडे पार्टी हो रही है तो वो साथ में आ रहा है, ताली बजा रहा है, शॉट पी रहा है और घर जा रहा है. Agreed. It's always the hard times that reveal true character. And that's when you realize कि कौन अपना है कौन पराया है. तेरे को कभी रियलाइज हुआ है कि मतलब किन रीजंस पे अल्टीमेटली तेरी कुछ फ्रेंडशिप्स टूटी होंगी लाइफ में? Yeah, it was usually either competition or jealousy, or I believe loyalty. Loyalty is not something that is crucial to romantic relationships only. Loyalty हर जगह, whether it's a parent-child relationship, whether it's friendship, loyalty is paramount. Nobody is a better epitome of loyalty than you, right? You have disowned people for simply disliking me. You've hated people who wronged me more than I hated them. And that is loyalty. अगर मैं किसी की दोस्त हूँ और मैं comfortable हूँ उस इंसान की दोस्त होते हुए जो मेरे दोस्त का दोस्त नहीं है, and दोस्त का दोस्त नहीं है, by that I mean मेरे दोस्त का दुश्मन है, that is not friendship. So loyalty I believe is a very big factor and that is very crucial. बाकी एक मिथ जो मेरे को फीमेल फ्रेंडशिप्स की बिल्कुल नहीं पसंद. सो देयर वाज दिस रील जिसमें लड़के और लड़कियों की फ्रेंडशिप के बीच में पैरेलल ड्रॉ किया है. ठीक है कि लड़की अपनी दूसरी फ्रेंड को फ़ोन कर रही है कि यार मुझे 500 रुपये GPay कर दे, तू कर देगी, मेरे को चाहिए. एंड द गर्ल इज़ लाइक कि यार अभी तो मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है या मेरा नेट नहीं चल रहा, समथिंग लाइक दैट. और लड़के ने फ़ोन किया, बिना पूछे 5000 बोले, उसने उसी टाइम के हाँ भाई तू जा पर भी है, मैं अभी दे रहा हूँ. I don't think that's true. I would give you my minimum balance. मतलब मैं अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस भी नहीं छोड़ूंगी अगर तेरे को रिक्वायरमेंट है. We've done that for each other, right? So ये बहुत बड़ी गलतफहमी है. Yes, you should be clear about money अपनी दोस्ती में. कभी भी किसी का फ़ायदा ना उठाओ, ना किसी को अपना फ़ायदा उठवाने दो. But at the same time ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियाँ चुंदी होती हैं. नहीं होती भाई. किडनी निकाल के देंगे भाई. कुछ चीज़ों में ना I genuinely laud male friendships. Even though तेरी और मेरी फ्रेंडशिप हमें इतनी ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि हमारी लड़कों की तरह थोड़ी सी है फ्रेंडशिप, या फिर हम इवेंचुअली आए हैं इस बात पे. फॉर एग्जाम्पल रोस्टिंग ईच अदर. एग्जैक्टली. लड़कियों में ना ये नहीं होता कल्चर के it's always about hyping each other up. You baby girl, you go girl, you killing queen, it, yes queen, and all of that. Hyping up is very important. That is also a love language, right? Praising somebody at their worst, it's a love language. I agree. But at the same time, roasting is a fucking love language, yes. right? To be able to feel so comfortable कि तुम एक इंसान की धज्जियां उड़ा सको और दूसरा बंदा ऑफेंस ना ले. बिकॉज अगर आपकी फ्रेंडशिप रोस्टिंग नहीं झेल सकती तो मतलब एक बहुत इनसिक्योर फ्रेंडशिप है. एंड हम 15 साल से दो जरूर हैं, बट वी हैव रीच्ड दैट पॉइंट सम few years. हाँ, 2-3 साल पहले कि जहाँ हम कंफर्टेबल थे एक दूसरे पे मजाक उड़ाना. और वो वैसे वाला मजाक नहीं था कि मैं तेरे को 10 लोगों के बीच में नीचा दिखा रही हूँ ये चीज़ बोल के. वो वैसे वाली चीज़ें थी कि भाई शायद तेरे और मेरे अलावा कोई हंस भी नहीं रहा था उस बात पे, क्योंकि कोई समझ भी नहीं पा रहा था वो क्या है. बट वो हक था एक दूसरे पे कि यार मैं नहीं तो कौन बोल सकता है. इतना फ्री फील कर पाना कि तुम एक दूसरे का मजाक उड़ा पाओ और दूसरा इंसान ऑफेंस ना ले. बिकॉज सी दिस इज व्हाट द थिंग इज, men are never really in competition with each other, at least in friends, right? Women even as friends are always in competition with each other. For example, दो लड़के सेम शर्ट में एक क्लब पे पहुंच जाए, फोटो खिंचवाएंगे, खुश होंगे. लड़की की जान सूख जाती है. You know, if her friend shows up at the same place in the same clothes, you'll be like, no, you stole my limelight. ऐसा कुछ नहीं. So you know, female friendships I do feel थोड़ी सी insecure होती हैं. और उस insecurity को पार करना is the ultimate test. और अगर आप वहाँ पहुँच गए तो congratulations, आप male friendships के level पे पहुँच गए हो. Male friendships की अच्छी चीज़ ये है that they are more secure, there is no competition, they can roast each other, they can truly be free with each other. But at the same time लड़कियों की friendship मेरे को लगता है कि उसमें substance ज़्यादा होता है. Agreed. But at the same time the space to vent. लड़के एक दूसरे के आगे ज़्यादा नहीं रोते. कॉमेडियंस ने इस बात का मजाक बनाया हुआ है कि लड़कियां एक दूसरे की बातें सुन रही है, 2-2 घंटे एक दूसरे को हाइप कर रही है. हमारा क्या है, हम तो सुसाइड से मरेंगे ही ना, क्योंकि हम जाते हैं, भाई बोलते हैं अभी तो रोना बंद कर यार, चल सुट्टा पी. अरे वो बताया था कि एक लड़का दूसरे लड़के के सामने रोता क्यों नहीं है. ठीक है, जाकिर खान अपने एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में बोल रहा था कि एक लड़का दूसरे इंसान के सामने रोता क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि दूसरे लड़के को उसको चुप नहीं कराना आता बहनचोद. क्योंकि उनके पास घूम फिर के 5 लाइनें होती हैं. चल खड़े हो जा, फिर दूसरा बोलेगा हाँ चल खड़े हो जा, चल यहाँ से चले. कहता कि किसी को इसमें चुप कराने वाली लाइन कौन सी थी? तुमने ऐसा क्या बोला कि मैं रोऊं तुम्हारे सामने और मैं चुप हो जाऊँ, तुम समझो भी.
सो इवेंचुअली यू नो लड़कों के पास वो स्पेस नहीं होता, ना लड़के कंफर्टेबल फील करते हैं आपस में रोने धोने में, तो वो इमोशनल एक्सचेंज तो उनका किसी से होता ही नहीं है. सो लड़कों की फ्रेंडशिप में वो एडवांटेज है, बट लड़कियों की फ्रेंडशिप में ये एडवांटेज है कि वी ट्रूली आर ईच अदर्स थेरेपिस्ट. यस, अनक्वालिफाइड अनपेड थेरेपिस्ट. हाँ, क्योंकि लड़कियां एक छोटे से टेक्स्ट मैसेज को भी एक्सचेंज करेंगी, स्क्रीनशॉट को भी एक्सचेंज करेंगी, कॉल पे हर डिटेल भी बताएंगी कि वो इस गाड़ी में लेने आया था, इस कलर के जूते पहने थे, ये वाला वॉलपेपर था उसका, बट उसकी रिंगटोन तो ऐसी थी, हर चीज़ डिस्कस होती है. सो आई फील लाइक वो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. इवेंचुअली वो कोर हर दोस्ती का सेम ही होता है कि भाई डिपेंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, अ सेफ स्पेस वेयर यू डोंट फील that you'll be judged. और सुख दुख में कौन तुम्हारे साथ खड़ा है, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना बिना एक्सपेक्टेशन के. राइट. देखो याद है कि हम दोनों दोस्त कैसे बने थे? हाँ, ट्यूशन से मैं गई थी ट्यूशन एक दिन, और तू तो फिर भी इतनी बिची नहीं थी, यू वर स्टिल अ वेरी नर्डी चाइल्ड, राइट? सो द फर्स्ट टाइम आई बिकेम फ्रेंड्स विद गरिमा. ठीक है, मैं ट्यूशन गई हूँ एंड आई वॉज ऑलवेज टू फैशनेबल फॉर माई एज, राइट? सो मैं छोटी सी बच्ची 9th क्लास में व्हाट आई वाज लाइक 15, so 14-15, right? And I've red nail paint on and ऐसे मैं scarf को style करके I went to the tuition to attend the class, and गरिमा मुझे देख के बोल रही है कौन कुत्ती आ गई है. Imagine a 14-year-old girl saying कुत्ती. उस टाइम पे गालियाँ कौन देता था? And you know, most friendships start like this, right? कि जब तक जो दो लड़कियां एक दूसरे से नफरत करती होती है वही दोस्त बनती हैं, और कोई रीजन नहीं होता किसी से नफरत करने का. You just don't like the girl, right? बस नहीं पसंद. That's what Garima, you know, felt for me, right? She was like, ये कौन कुत्ती आ गई? And then you know that same कुत्ती is her best friend now. So you know that's what happens in most friendships. So the person that you think you're gonna hate, और जिससे शुरू में नहीं बनती, तुम्हारा वाइब चेक नहीं हो रहा उस इंसान के साथ, तुम लोग रिलेट नहीं कर पा रहे, तुम लोग एक दूसरे को शक्लें बना रहे हो, इवेंचुअली तुम उन्हीं के साथ मरते हो. और वो चीज़ होती है. इनफैक्ट रिलेशनशिप में बोलते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट. मेरे को तो फ्रेंडशिप में ये चीज़ ट्रू लगती है. agreed 100%. कि दो जो सेम लोग होते हैं ना, उनकी कंपैटिबिलिटी मेरे को लगता है कि हो ही नहीं सकती. कुछ चीज़ों पे तुम्हें डिफरेंट होना ही पड़ता है कि एक हमेशा एडवेंचरस इंसान होगा, दूसरा हमेशा वैसा सा इंसान होगा, और एक हमेशा दोस्त होता है जो दूसरे को बिगाड़ता है, जैसे तूने मेरे को बिगाड़ा. हाँ, सही बात है. एक उम्र तक, फिर एक उम्र के बाद मैंने तेरे को बिगाड़ा. That's true. बिगाड़ा है हमने एक दूसरे को. अब तू बिगाड़ती है मुझे. हाँ. By that do you mean I spoil you? That too. Well, that too. Yes. स्पॉइल तो आई थिंक हम लोगों को करते हैं हमारे मेल बेस्ट फ्रेंड्स. I agree. Nobody spoils you like your male best friends. और बहुत थिन लाइन होती है मेल बेस्ट फ्रेंड और पंटर के बीच में. हाँ, है ना, कि किसको पंटर बना लेते हैं और किसको जेन्युइन सच्चा मेल फ्रेंड बनाते हैं, उसको दिल से दोस्त मानते हैं. बट ये तो है, मुझे तो खैर मेरी बेस्ट फ्रेंड्स ने, मेरी फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स ने जितना बिगाड़ा है उतना शायद किसी लड़के ने भी नहीं बिगाड़ा होगा. बट नहीं, मेरे मेल बेस्ट फ्रेंड ने भी मुझे बहुत बिगाड़ा है. आई वुड अग्री टू दैट. और वो वाली दोस्ती अलग होती है, और दुनिया बोलती है कि नहीं भाई लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते. ठीक है, करण जौहर बोलता है लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते. दैट्स बुलशिट. बट आई जस्ट फील लाइक कि शायद हाँ, कहीं ना कहीं एक लड़के के दिल में वो वाली चीज़ हमेशा होगी कि अगर एक अपॉर्चुन मोमेंट आएगी तो मैं इस पर ट्राई करूँगा. बट मैंने अपनी लाइफ में बहुत डिफरेंट चीज़ एक्सपीरियंस करी है. मैंने करी एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ जहाँ पे मैं हूँ एक इंसान के साथ दोस्त इतने सालों से, ठीक है 10 साल से दोस्त हूँ, और नहीं फील हुआ तो नहीं फील हुआ. एग्जैक्टली. प्लेटोनिक है तो तुम दोनों के पास वो अपॉर्चुनिटीज थी जहाँ पे वो भी सिंगल था, तू भी सिंगल थी, और दोनों ने कभी वो अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं की. बिकॉज दैट इज हाउ प्लेटोनिक द फ्रेंडशिप वॉज. एंड वो प्लेटोनिक मेल फीमेल फ्रेंडशिप से ज़्यादा सुंदर कुछ नहीं होता. वो कंफर्ट, यू नो, वो वाली चीज़ होती है कि वो तुम्हारा भाई भी नहीं है, कि भाई बहन वाला रिलेशनशिप भी नहीं है, बट डायनामिक एकदम वैसा है. राइट. और वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली लाइकिंग और वो वाली वो बटरफ्लाइज भी नहीं आती साथ में बैठ के, बट वो कंफर्ट भी है कि कोई भी बात कर सकते हो. और बहुत लोग मेरे को कहते हैं कि हाँ तुम दोनों में से कोई ना कोई यू नो लेसर गुड लुकिंग होगा, तभी नहीं हुआ तुम दोनों के बीच में कुछ भी. बट नहीं भाई, कि अगला इंसान भी अच्छा दिखता है, अच्छा अपने आप को मेंटेन करता है, उसकी पर्सनालिटी है, मेरी भी है, एंड आई हैव बीन एबल टू रिटेन दैट. और बट वो ये कि बहुत सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है. बहुत सारी लड़कियाँ यू नो वो इग्नोरेंस इज ब्लिस वाले उसमें रहती है कि उनकी मेल फ्रेंडशिप्स चलती हैं तब तक जब तक वो उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करती कि दूसरी साइड से कोई लाइकिंग हो. और जब तक वो होप होता है तब तक वो दोस्ती चलती रहती है. और जिस दिन लड़के का या लड़की का, जिसका भी whoever is attracted to the other person in a romantic manner, उसका जिस दिन वो उम्मीद टूटती है उस दिन दोस्ती भी खत्म होनी शुरू हो जाती है. बट एट द सेम टाइम एज वी जस्ट सेड, वी आर वेरी मच लाइव एग्जाम्पल्स कि प्लेटोनिक फीमेल मेल फ्रेंडशिप्स एग्जिस्ट करती हैं और वो बहुत सुंदर होती हैं. ट्रू.
तू दोस्ती में किस हद तक जा सकती है? मेरे को पता है कि अगर मैंने कल को कोई बंदा उड़ा दिया और मैं तेरे को कॉल करूँ कि आ जा, वी हैव टू बरी योर डेड बॉडी, तो मुझे पता है कि तू नहीं आएगी. आई थिंक सही गलत की जहाँ पर लाइन आती है ना, तो सी देख, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस. योर एंड माई फ्रेंडशिप इज अ लॉट लाइक कृष्ण अर्जुन फ्रेंडशिप, राइट? तू अर्जुन है, मैं कृष्ण हूँ, ठीक है? अर्जुन इज लाइक आई विल गो टू वॉर, आई विल गो टू वॉर विदाउट एनी वेपन्स, विदाउट एनी सेना, मुझे कृष्ण सिर्फ तेरा साथ चाहिए, राइट? आई एम लाइक मैं खेलूंगा नहीं तेरे साथ, बट आई मेक श्योर यू विन. मैं अगर किसी को मार दूंगी, गाड़ दूंगी, कुछ भी कर दूंगी, तू मेरा साथ दे रही होगी. मेरी किसी दिन कैट फाइट होगी तो लड़की के बाद मेरे साथ फूटेगी, राइट? आई एम द पर्सन हु विल नॉट लेट यू गेट इनटू अ फाइट, राइट? आई विल बी लाइक ना मैं खुद करूंगी ना मैं तुझे करने दूंगी. सो यू नो आई एम दैट पर्सन. सो वी हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप. लाइक तेरी अप्रोच दोस्ती में बहुत अलग है, मेरी अप्रोच बहुत अलग है, और हम दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बहुत अलग तरीके का है. द फैक्ट दैट वी एक्सेप्ट कि इसका प्यार मेरे जैसा नहीं है बट प्यार तो है, दैट इज वॉट ऑल्सो मेक्स अ फ्रेंडशिप लास्ट, राइट? एक्सेप्टिंग दैट पर्सन विद देयर लव लैंग्वेज. आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ फ्रेंडशिप, बिकॉज दो लोग कभी भी एक दूसरे को सेम तरीके का प्यार नहीं करते. मेरे को लगता है कि एक्सेप्टेंस एक इंसान जिंदगी में सीखता ही अपने दोस्तों से है, क्योंकि दोस्त कोई शक्ल सूरत या पैसा तो देख के बनाता नहीं है. मतलब बचपन में कहीं मिल गए बचपन में, और बहुत सिंपल चीजें होती हैं यार बचपन में, कि एक पेंसिल शेयर कर दी कि मेरे पास बुक नहीं थी और उसने मेरे साथ अपनी बुक शेयर कर दी, उसने मेरे साथ अपना टिफिन शेयर कर दिया, और बचपन में इट वाज दैट सिंपल टू मेक फ्रेंड्स, राइट? एंड दे लास्ट मेक्स फ्रेंडशिप सो ब्यूटीफुल, क्योंकि ना लुक्स फैक्टर होती है, ना पैसा फैक्टर होता है, ना अट्रैक्शन फैक्टर होती है. इट्स सोनली द फैक्ट दैट पसंद आ गया, ये इंसान मुझे पसंद आ गया, कि चूतिया है बट मेरा है. हाँ, दैट इज फ्रेंडशिप, दैट इज फ्रेंडशिप. कि भाई कि कोई बात नहीं, तू एक नंबर का चूतिया बट तू मेरा चूतिया है ना, और मेरे को चलेगा. तू चाहे सेंस ना बना, तू लाइफ में फेल हो जा, तू क्लास में फेल हो जा, ठीक है, तेरे को 10 लोग रिजेक्ट करके जा रहे होंगे, बट अगर मेरी तेरे साथ दोस्ती है तो वो है, और वो बिना किसी रीजन की है. आई फील लाइक इस एज पे आके ना मेरे से अब दोस्त नहीं बनते, या मेरा बनाने का मन भी नहीं करता लोग, या नहीं बनते. एंड शायद हमारे इसीलिए नहीं बन रहे, हम बनाना चाह नहीं रहे, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव दोज फ्रेंड्स. आई हैव लर्न दिस द हार्ड वे. यू आर ऑलवेज एनीवे क्वालिटी ओवर क्वांटिटी सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. आई वाज ऑलवेज अ क्वांटिटी पर्सन, राइट? मेरे को भीड़ नहीं चाहिए थी, एंड यू वुड एंजॉय इन द भीड़. आई वुड एंजॉय द भीड़, राइट? अब मेरे को समझ में आ गया, इट्स ऑलवेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. एंड नाउ आई डोंट गिव अ फक अबाउट 4 अदर पीपल दैट कुड पोटेंशियली बी माई फ्रेंड्स. मेरे जो 3-4 लोग हैं मेरे पास, वो मुझे बहुत प्यारे हैं. आई गेट एवरीथिंग इन लाइफ फ्रॉम देम दैट आई नीड एज अ फ्रेंड, एंड आई डोंट केयर अबाउट मेकिंग more friends. So yes, I do agree कि एक पॉइंट के बाद, और जिनके बनते हैं good for them, because दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो सबको मिलनी चाहिए. So अगर बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट एट दिस पॉइंट आई डोंट थिंक मेरे बनेंगे, या मैं बनाना चाहूंगी भी. हमने बंदा पटवाने की मुझे नहीं याद कि हमने हेल्प करी या नहीं करी, हमने रिलेशनशिप तोड़वाने में तो पूरी हेल्प करी है राधिका. हाँ बिल्कुल करी है. मतलब भाई नहीं पसंद तो नहीं पसंद. हाँ. तो वही वाली चीजें, वी वोंट मेक द डिसीजन. सो आई विल नेवर पुल सोनू ऑन माय T2, बट यू विल पुश मी टू द पॉइंट. आई इन्फ्लुएंस, पूरा इन्फ्लुएंस करूंगी. अगर मुझे लग रहा है कि मेरी बहन के लिए लड़का सही नहीं है, तो मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं अपने तरीके से उसको उसकी असलियत दिखा दूं. सही में. Yes. और कितनी बारी तो ऐसा हुआ है कि तूने और मैंने, याद है तेरे को एक फेज था हमारा जहाँ पे तू और मैं, वी वर ब्रीफली सीइंग 2 पीपल, और हम दोनों का मन सा उठ गया था कि समझ नहीं आ रहा, और हम दोनों बैठे हैं कमरे में, और मैंने अपना मैसेज टाइप करा है ब्रेकअप का, और तूने अपना मैसेज ब्रेकअप का टाइप करा है. कॉलेज का फाइनल सेमेस्टर, कॉलेज के फाइनल सेमेस्टर के बीच में पढ़ाई छोड़ के, वैसे ही पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं की. तू डांस कर रही थी, मैं मॉडलिंग कर रही थी, और बीच में किताबें छोड़ के दोनों ब्रेकअप टेक्स्ट. आई हैव नो आइडिया तू और मैं लाइफ में इतने चीप कैसे हो गए कि हम टेक्स्ट कर रहे हैं. नहीं, वी ब्रोक अप ओवर अ टेक्स्ट. इट्स द शैलोएस्ट थिंग टू डू इन लाइफ, राइट? ब्रेकिंग अप विद समबडी ओवर अ टेक्स्ट इज द चीपेस्ट, शैलोएस्ट थिंग टू डू in life, right? But I did that. But I will again go back and do that. I will be cheap. But मैं confront तो नहीं कर पाऊंगी और ये बोल पाऊंगी कि यार मैं बोर हो गई. और मुझे याद है कि तू और मैं दोनों मेरे कमरे में बैठे हैं, तेरे कमरे में, एक दूसरे का मैसेज पढ़वा रहे हैं. फिर हम दोनों ने फोन एक्सचेंज किया कि पढ़ ले, हाँ सही है, ये चीज ऐसे कर देते, ये चीज ऐसे कर देते, और सेंड करके हमने टाटा बाय बाय किया हुआ है. भाई वी हैव डन क्रेजी शिट. यस, हमने एक दूसरे के लिए झूठ भी बोले यार, बहुत ज्यादा. बहुत. मतलब जितना मैंने अपना कर्मा तेरे चक्कर में खराब किया है ना अपनी जिंदगी में. राधिका प्लीज. राधिका
तूने अपना कर्मा खराब किया होगा मेरे चक्कर में. मैंने बदनामी झेली है तेरे लिए. आई हैव बिन द बैड गर्ल इन एवरी स्टोरी थैंक्स टू यू बिच. इट्स नॉट कि मैंने कुछ गलत किया, इट्स द फैक्ट कि मैंने कुछ किया ही नहीं. हम वेकेशन पे हम वेकेशन पे गए हैं. यू गेट इनटू अ फाइट विद योर बॉयफ्रेंड. यू डोंट वांट टू सी हिज फेस एनीमोर. ऑल हिज फ्रेंड्स आर कमिंग एंड हाउंडिंग यू. ठीक है, दे हवरिंग ओवर योर हेड कि बात कर ले. और तेरे मुंह में दही जमी हुई है. तू नहीं कुछ भौंक पा रही कि नहीं भाई मेरे को नहीं करनी बात, मुझे नहीं देखनी शक्ल इस चूतिए की. एंड आई एम टेकिंग द फॉल फॉर यू. मैं बीच में आके कोई मेरी बेस्ट फ्रेंड से बात नहीं करेगा, छोड़ दो सब इसको, वो कर लेगी बात जब उसको करनी है. एंड आई हैव like literally every person in that hotel held me responsible for your breakup and I did nothing. I had nothing to do with it. In fact, I was a collateral damage. Yes. And I'm very sorry about that. It's okay. Yeah, but at the same time, I think दोस्ती में बहुत झेलना भी पड़ता है. So you know, मैंने बदनामी झेली है. मैंने तेरे ex-boyfriend झेले हैं. तूने मेरी हाँ में हाँ तेरी हमेशा नहीं होती. येस, वी अग्री ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज वी हैव ग्रोन अप टुगेदर. तो माइंड्स ही साथ शेप हुए, एक्सपीरियंसेस भी बहुत हद तक दोनों के सिमिलर रहे हैं. बट एट द सेम टाइम देयर आर टाइम्स व्हेन वी फाइट विद ईच अदर. हमारी लंबी लड़ाइयाँ हुई है बिकॉज वी हैड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स. हफ्ते बात नहीं करी. बट पता फर्क क्या है, तेरी और मेरी दोस्ती ना हमारे मम्मी पापा के मैरिज रिलेशनशिप की तरह है कि दुनिया के सामने तो हाँ मेरे पति हैं, मेरे ये है, मेरे वो है, और अगर लड़ाई होगी तो वो क्लोज डोर्स के पीछे होगी. हम कभी भी दूसरों के मुंह पे जाके नहीं लड़ते, राइट. हम हमेशा पीछे से लड़ेंगे. हम हमेशा बाद में एक दूसरे को टेक्स्ट करके बोलेंगे कि नहीं तूने ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तो इस चीज का बुरा मान गई, ये हो गया वो हो गया. वो वैसे वाली चीज होती है. बट ओवरऑल देखिए झेलना तो पड़ता ही है. तू ये बात कर रही है दोस्ती में कितनी बारी मतलब एक्स बॉयफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स तो दूर की बात होती है, कितनी बारी रिश्तेदारी भी झेलनी पड़ जाती है एक दूसरे की उस पर, अगर तुम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हो. हाँ, एक दूसरे की फैमिली झेलनी पड़ती है कई बारी. समटाइम्स आपकी, एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा हुआ है, आई वाज ऑलवेज दैट गर्ल जो लोगों के पेरेंट्स को शुरू में एटलीस्ट नहीं पसंद आती थी. एंड इवेंचुअली व्हेन दे वुड फाइंड आउट शी इज अ ब्राइट किड, शी स्टडीज आल्सो, शी इज एन ऑलराउंडर, देन लाइक हाँ वेरी गुड गर्ल टू बी फ्रेंड्स विद. बट इनिशियली आई वाज ऑलवेज दैट रेड फ्लैग जस्ट जिसके अगेंस्ट सारे माँ बाप अपने बच्चों को वार्न करते कि नहीं इससे दूर है, ये लड़की तुझे बिगाड़ देगी. योर मदर हैड दैट फीलिंग फॉर मी, शी फेल्ट दैट वे अबाउट मी, राइट. इवेंचुअली गेटिंग ओवर दैट एंड देन बिकमिंग योर मदर्स favorite. Yes. To the point that she considers me as her own second daughter. Yeah. वो बहुत बड़ी वो ट्रांजिशन बड़ी प्यारी होती है. इनफैक्ट दोस्ती इतनी प्यारी चीज है. इट्स नॉट यू, माई बेस्ट फ्रेंड, माई अदर बेस्ट फ्रेंड, शी ब्रोक अप विद हर बॉयफ्रेंड बिकॉज दे गॉट इनटू अ फाइट एंड ही सेड समथिंग अबाउट मी जो मुझे बाय द वे आज तक नहीं पता है. उसने मुझे कभी बताई नहीं, अभी तक नहीं बताई. उसने मुझे अभी तक नहीं बताई. बट उसने कुछ ऐसा बोला जो बहुत गलत था और ऑब्वियसली सच नहीं था. एंड शी कुडंट टेक दैट फॉर मी. आई डोंट नो अगर ये लॉयल्टी नहीं है तो क्या है. मेरे को तो वो दोस्ती समझ ही नहीं आती जहाँ पे कहने को तू और मैं दोस्त हैं, बट मैं अगर तीसरे इंसान के साथ बैठूं तो तीसरा इंसान इतना कंफर्टेबल फील कर रहा है कि वो तेरी बिचिंग मेरे सामने कर जाए. मेरे को ऐसा लगता है कि वो दोस्ती ही नहीं है. क्योंकि that's fake friendship. That's fake friendship. अच्छा, what do you think are friendship red flags? Following each other's exes on Instagram. Yes. No, see, there's a catch to it. For example, I have an ex-boyfriend. मेरे उसके साथ अच्छे टर्म्स हैं. वो मुझे अभी तक फॉलो कर रहा है, मैं उसको अभी तक फॉलो कर रही हूँ. तो ऑब्वियसली मेरे टर्म्स उसके साथ अच्छे हैं. So you still keeping him on your Instagram is okay. It's okay. If things go ugly between me and my boyfriend, right? And now we are not on each other's Instagram anymore, but you still follow him. And खैर हमारी दोस्ती में कभी वो पॉइंट आया नहीं जहाँ पे हमें एक दूसरे को बोलने की जरूरत पड़े. But I think it's a very big red flag. और मेरे को लगता है कि यार अगर चल बोल भी दिया, क्योंकि कितनी बारी ना एक दोस्त को नहीं समझ आ रहा हो तो उसको नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. अगर एक इंसान ने आपको बोल दिया उसके बाद और आपने तब भी नहीं किया तो मेरे को लगता है कि यार क्या पॉइंट है. दोस्ती है, ठीक है, मान लिया बहुत चूतिया छोटी सी चीज है, क्या फर्क पड़ता है. मान लिया कि हाँ ठीक है, क्या फर्क. बट तुम्हारे दोस्त को नहीं चाहिए ना. It is such a small price to pay because see, या तो ना कि वो लोग पहले से दोस्त हो. You are on his Instagram just because I dated him. Association. That's it, right? और पता है बात ना सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं. लोग बोलेंगे कितनी टुच्ची सी चीज है कि सोशल मीडिया फॉलो कौन देखता है. चीज है irrational. हाँ, we are living in a digital world, right? आज की डेट में कोई एक दूसरे को बर्थडे नहीं भेजता, हाय हेलो नहीं भेजता, बर्थडे मैसेजेस नहीं भेज रहे, हाय हेलो नहीं भेज रहे, एक दूसरे को रील्स भेज रहे हैं. सोशल मीडिया इज अ फॉर्म ऑफ एसोसिएशन and communication, right? When you choose to stay associated with somebody connected with somebody on Instagram, जो अब तुम्हारे फ्रेंड के साथ associated नहीं है और तुम जानते ही उसको अपने दोस्त की वजह से, उसने तुम्हारे दोस्त का दिल दुखाया है. So that is you being disloyal. It's as simple as that. So this is a red flag for me. Another red flag is अगर तेरी किसी पे नजर आ गई तो वो उस पॉइंट से बंदा मेरा भाई है या भाई जैसा है. It's as simple as that for me. This has been my mantra all my life. सादिका को पसंद आ गया मेरा भाई और वो वैसे ही होना चाहिए. So eyeing the same guy
in female friendships, और अगर male friendships है तो eyeing the same girl is I think very very toxic. मेरे को तो ऐसा लगता है कि जहाँ पे आपने उस थॉट को जरा सा ज्यादा एंटरटेन भी कर लिया ना, वहाँ पे आप गए, वहाँ पे गिर गए आप, क्योंकि वहाँ से देयर इज नो कमिंग बैक. मैं फिसल गया, और वहाँ मैं फिसल गया, राइट. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, वो जो शो था, ठीक है, उसमें एक एपिसोड था जिसमें जोई एक लड़की को डेट कर रहा होता है और चैंडलर उसको देख चुका होता है, वो उसके प्यार में पड़ चुका होता है, गिर चुका होता है, और वो दोनों इवेंचुअली दे एंड अप चीटिंग. भाई मैं तो नहीं सह पाऊँ, मेरे से ना हो पाए. Same, I agree. मेरे से हो ही नहीं पाएगा. Unless it is once in a lifetime kind of love, जो तुम्हें लगता है कि आज तक ना मुझे मिला है ना आज तक हुआ है और कभी दोबारा होगा नहीं, and you're so sure of that love. अबे चल, तब भी मैं नहीं करूँ, मतलब वो दोस्ती किस बात की? I think मैं सिर्फ ये एक एक्सेप्शन दूंगी. यार नॉर्मल फ्रेंडशिप्स में तुम ऑब्वियसली इतना you won't think about it so much, right? So unless it is once in a lifetime kind of प्यार, not the same person. You can't do the same person your friend is doing. Simple. हाँ, it is disgusting. It is, I don't know, some sort of incest. मेरे लिए तो एक रेड फ्लैग ये है कि भाई अगर तुम जहाँ पे अपनी दोस्ती यारी की वो जो सीक्रेट्स होते हैं वो इधर उधर शेयर वेयर करने लग जाते हो, मेरे लिए तो वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है. अगर मैं तुमसे बैठ के अपने दिल की बातें नहीं शेयर कर सकती, मैं अपने डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स नहीं शेयर कर सकती, अपने कांड और कलेश नहीं शेयर कर सकती विदाउट यू गोइंग एंड टेलिंग अदर 10 पीपल, तो फिर मेरे लिए तो क्या दोस्त बनेगा रे तू फिर. वो वाला पॉइंट आ जाता है. यस, आई थिंक ये श्योरिटी बहुत ज़रूरी है एक दोस्ती में होना कि अगर मैंने इसको बताई है कोई बात तो ये इसके साथ इसके कफन तक जाएगी. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तूने कभी मेरे से कुछ छुपाया है? क्या तूने मेरे से कुछ छुपाया हुआ है? क्या? ठीक है, one or two things. प्लूरल? But on yes, plural. But on a day-to-day basis, किसके बारे में? I tell you more about my life than you tell me about yours. बट अगर मैं तेरे को ये नहीं बता रही कि आज मेरे जूतों के लेस का कलर क्या था, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ, तू ज्यादा तेरे को share कर वैसे सब सकती है. बताती हूँ साधिका. तूने क्या नहीं बताया मेरे को ये जानने में I ज़्यादा will not interest tell है. you obviously. अच्छा, is it about me or you? One thing about you, nothing about me. Me, you already know. राधिका, What? Just can't. Why not? Let it go. I can't. दोस्ती तेरे को पता है राधिका हमारी तब टेस्ट हुई है इतनी अजीब अजीब मोमेंट्स में, जब मैं, गरिमा और तू, हम तीनों एक तीसरे के घर का झूठ बोल के निकले थे अपने घर पे अपनी मम्मियों को, कि मैंने बोला कि मम्मा मैं राधिका के घर जा रही हूँ, राधिका ने बोला कि मम्मा मैं गरिमा के घर जा रही हूँ, गरिमा ने बोला कि मम्मा मैं साधिका के घर रहने जा रही हूँ. और सब बाहर हैं, हम लोग नाइट आउट मारने का सोच रहे हैं, हम तीनों एक तीसरे का बोल के नाइट आउट मारने के लिए गए हुए हैं, और सिर्फ राधिका की मम्मी को पता है कि सच क्या है, कि चलो बच्चे अल्टीमेटली घूम फिर के यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा झूठ हर किसी ने बोला हुआ है, राइट. और किसी एक के पेरेंट का दिमाग हो गया खराब और उन्होंने कॉल कर दिए, और उस रात जब तेरी मम्मी के फ़ोन आए हैं और हम गांड फटी में घर वापस घुसे हैं, और वो तो आंटी का दिल अच्छा था कि उन्होंने हमारे पेरेंट्स को सिर्फ कॉल करके बोला नहीं, वरना Bro, even out of spite, I took the fall for both of you, right? And you were grounded. I was grounded. मेरी मम्मी ने मेरी बाट लगाई, मेरे पापा ने मेरी बाट लगाई, 4 दिन तक मैं उनसे आंखें नहीं मिला पाई. And you know what the bad thing is, what the fucked up thing is, we weren't even doing anything bad that night. We were just out with friends, and the whole plan was just to go here and there, chill and come back, right? और ये हो गया. There were times when I just wanted to randomly give your parents a call and tell them कि आंटी ये नहीं थी मेरे घर पे, ये बाहर थी, कि why should I be the one always taking call? पता है ये वाले फॉल ना एक दूसरे को लेने देना फिर भी इजी होता है, बट जो मेजर चीज होती है ना, वो तो चाहे तुम्हारे दोस्त ने करा ही क्यों ना हो, तुम अपने पेरेंट्स के सामने एडमिट नहीं कर सकते. ये भी दोस्ती का एक, ये भी दोस्ती का रूल होता है कि मतलब अगर aspect है. फॉर एग्जाम्पल वो तो चल तू बुरी हरकतों में है नहीं, ठीक है, बट कल को तू दोस्त होती मेरी और तू कर रही होती ड्रग्स, ठीक है, बट दोस्ती तो ये देखती नहीं है कि इंसान ड्रग्स कर रहा है या फिर भजन पढ़ रहा है. भाई मैं नहीं बता सकती अपने पेरेंट्स को, तो मैं नहीं बता सकती, मैं किसी और को बुरा जरूर बना दूंगी. Your friends and मैं तेरे को नहीं family, obviously. दैट इज ट्रू. बट ये भी बात होती है कि जब गाज गिरती है तो फिर अपने बाद अपना दोस्त याद आता है कि चल ठीक है, मैं नहीं तो तू बलि का बकरा बन जा. Have you ever put the blame on me in front of your parents for something that you did? No. Seriously, what the fuck? Are you fucking kidding me, Sadhika? मैंने नहीं किया यार, पागल है क्या? मैं नहीं करती. तुम मिल बाहर अभी तक. Bro, I've never done that with you. Never. But you've hid things from me, apparently, about me. तो फिर तो मैंने भी किया फिर. तो
राधिका, वैसे तूने कभी सोचा है कि क्या हमारी दोस्ती टॉक्सिक है? दूसरों के लिए है, हाँ, इतनी जरूर है, टॉक्सिक नहीं बट इतनी गहरी जरूर है कि इट कैन बिकम अ प्रॉब्लम इन आवर रोमांटिक रिलेशनशिप्स। कैन क्या, इट हैज बिकम एंड इट विल बिकम अनलेस वी लर्न टू बैलेंस इट आउट, और हम दूसरे भी एक दूसरे के लिए इतने अंडरस्टैंडिंग हो जो अब तक हम रहे हैं, राइट? बिकॉज 9 घंटे की नौकरी के बाद आपके पास 4 घंटे बच रहे हैं, उस 4 घंटे में आपने खाना भी खाना है, फैमिली को टाइम भी देना है, ऑलरेडी बेस्ट फ्रेंड को आदत डलवाई है 2-2 घंटे बात करने की, नाउ सडनली यू हैव अ गाय टू एंटरटेन, राइट? तो वो टाइम नेचुरली बटेगा। इट कैन बिकम अ प्रॉब्लम, हैज, विल, बट टॉक्सिक नहीं है। सी आई टेल यू व्हाट, अच्छा, टॉक्सिक इसलिए क्योंकि खून का रिश्ता नहीं है, सिर्फ इसलिए। अगर एक मिनट, अगर सैफ अली खान आलिया भट्ट को पूछता है कि तू भी अपनी बहन से इतनी बातें करती है जितनी बेबो और लोलो बातें करते हैं, दैट मीन्स ही थिंक्स इट्स abnormal. Those girls are always on phone, that's what they've gone and they discuss every little thing, right? And they discuss every little thing, and that is what sisters do, right? And eventually it's okay. So just because two best friends don't have a खून का रिश्ता, it's not okay, and this is toxic. Why the fuck is it toxic? It's not. I don't think. You have never influenced me to do something wrong. I have never influenced you to do something wrong. Shut up and don't laugh. मैंने तेरे को बुरी हरकतों से, लोगों से और चीजों से बचाया है, और मैंने तेरे को बुरी नजर से बचाया है। हाँ, और तू काला टीका है मेरा। I'm a very racist, fucking racist joke. Fuck you. I didn't mean it like that. साली। I didn't mean it like that. You mean तो नजर बट्टू बन के घूमती है। Listen, don't dig your own grave. और टॉक्सिसिटी पे मैं तेरे को एक लाइन सुनाती हूँ, एक सेइंग है पुरानी, हु डिस्कवर्ड वाटर, जिसने भी किया हुआ इट वॉज नॉट द फिश, क्योंकि जब जो चीज उसमें रह रहा होता है उसको नहीं समझ आता कि क्या है। फिश अगर पानी में रह रही है, फिश ने नहीं डिस्कवर किया होगा पानी को, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा। टॉक्सिक लगती है दोस्ती? नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि टॉक्सिसिटी क्या है, तू डिफाइन कर, आज हम सारा मिथ ब्रेक कर देते हैं। अच्छा ठीक है, देख ऐसा है, टॉक्सिसिटी का मेरे को नहीं पता, मैं ये बता सकती हूँ कि हेल्दी क्या होता है। यू नो रिलेशनशिप इज हेल्दी व्हेन इट एड्स वैल्यू टू योर लाइफ। फर्स्टली टॉक्सिसिटी में क्या होता है, कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप, तू अभी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आई है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। हाउ डिड यू नो दैट इट वाज टॉक्सिक फॉर यू? माय बेस्ट फ्रेंड टोल्ड मी repeatedly, and you didn't give a fuck about what your best friend said until you realized it for yourself. हाँ, ठीक है। तो टॉक्सिक क्या होता है? फर्स्टली यू आर नॉट अलाउड टू बी योरसेल्फ इन द रिलेशनशिप। हाँ, ठीक है। देयर इज एंजाइटी, क्योंकि कॉन्स्टेंटली तुम्हें उस इंसान के अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स को मीट करना होता है और हमेशा अपने आप को उसके लिए बिछाना होता है, तुम्हें एंजाइटी होने लगती है, राइट? बिकॉज यू ऑलवेज फील दैट यूर फेलिंग, राइट? और उसको खुश रखना है, बिकॉज मैं कुछ भी कर लूँ, दिस फकिंग नार्सिसिस्ट विल नेवर बी हैप्पी विद मी। सो दैट इज टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी इज समथिंग दैट डिप्लीट्स योर एनर्जी, राइट? इट becomes mentally, emotionally, and after a point physically challenging to you, right? Because and also it happens in phases, जैसे कहते हैं ना वो ebbs and flows, एकदम से डाउनर आ जाएगा, फिर हाई आ जाएगा, राइट? और वो जो कांस्टेंट ऊपर नीचे होता है, that is also a sign. Toxicity, it's like a drug, right? कि you have those extreme emotions, yes, right? Have you ever felt those in the friendship? I have never felt anxiety. I could go 5 days without talking to you, right? और मुझे कभी भी ये नहीं लगेगा कि I will miss you. Miss you, yes. I will miss you for sure. I will miss talking to you. But मेरे को कभी नहीं लगेगा यार मैं इससे नाराज हूँ, बट मैं इससे ज़्यादा देर नाराज नहीं रह सकती हूँ कि किसी और के पास चली जाएगी। या अगर आज मैंने दिल खोल के इससे अपनी नाराजगी दिखा दी तो ये मेरी दोस्त नहीं बचेगी। हाँ, वो चीज़ नहीं हुई, राइट? तो फिर टॉक्सिक कैसे है? आई थिंक टॉक्सिक और लोगों को भी क्यों लगता है, और लोग में सारे लोग आते हैं, हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स आते हैं, मेरा भाई आता है, ठीक है, तेरे पेरेंट्स आते हैं, मेरे पेरेंट्स आते हैं, उन लोगों को सिर्फ ये लगता है कि यार जितना टाइम हम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं और जितनी डिटेल्स हम एक दूसरे से शेयर करते हैं वो बहुत ही अनयूजुअल है, वो नॉर्मल नहीं है। See, I just think, yes, of course it's not normal, and that is why we count this twice when we are counting our blessings, ना? क्योंकि हमें पता है कि it is not easy to find. So just because God has graced you with something so rare, it doesn't mean it's toxic. That is never the title I would give to something that makes me feel gratitude every single day, bhai. No, not at all. Yeah. Just because we are replicating a खून का रिश्ता in a not non-खून का रिश्ता does not mean sister that it's from toxic. another mother type वाला। हाँ, तो बस that's it. But at the same time I would like to also say और add कि ये चीज़ें ऐसी नहीं होती कि हाँ बस एक ट्यूशन में एक क्लास में 2 लोग साथ में बैठ गए, चीटिंग कर ली और दोस्त बन गए। भाई you and I have also gone through major ups and downs. Of course. मतलब कितनी बार तेरी और मेरी उस कगार पे आके लड़ाई रुकी है कि जहाँ पे तू अपने आप को ये समझा रही थी कि नहीं शायद मेरे को सादिका का दोस्त ही नहीं रहना, right? And it broke my heart. But it broke your heart, it broke my heart because after all that we've been through and after the role you've played in my life,
मुझे ये पता था कि अगर मेरे को लाइफ में किसी एक इंसान की जरूरत है तो वो तेरी है. एंड देयर वाज अ पॉइंट वेयर यू हर्ट मी सो मच कि मेरे को लगा था कि fuck it, I don't want to be friends with her anymore. But I think it takes constant effort. Takes, like any other relationship, friendship is also work. Yes, definitely it's easier than romantic relationships, right? It's easier क्योंकि जजमेंट नहीं है, एक्सपेक्टेशंस नहीं है, Insecurity नहीं है. 5 दिन बात नहीं होगी, कोई कुछ बुरा नहीं मानेगा, वो कोई जोक भी Right. कर देंगे, कोई कुछ बुरा नहीं मानेगा. रिलेशनशिप में सारी चीजें होती हैं. एंड आई ऑल्सो फील कि यार हर कोई ना, तू और मैं बहुत एक अलग डिग्री का फ्रेंडशिप एक्सपीरियंस कर रहे हैं आज की डेट में. और वो वही चीज होती है कि एक पौधे में जितना पानी डालोगे वो उतना ग्रो करेगा, राइट? तो हर लोग, शायद सारे लोग ना रिलेट करें तेरे और मेरे से, शायद बाकी लोगों को लगे कि हम दोनों क्लॉसेटेड लेस्बियंस हैं. एंड आई विश हम होते, क्योंकि फिर हमारे पास पार्टनर्स होते, राइट? बट दैट इज ओके एंड टू ईच देयर ओन. बट आई जस्ट फील लाइक कि दिस इज ऑल्सो वेरी रेयर, इट इज यूनिक एंड इट इज नॉट एज ईजी एज इट लुक्स. It is hard work. It is in its own not, self. and yes, I do feel good friendships that are not this tight are much easier to maintain because वहाँ पे गिले शिकवे भी कम होते हैं. I have friends जहाँ जिनसे मेरी कोई expectations नहीं है. Speaking of पौधे को पानी डालना, ज़्यादा पानी डालने से पौधा मरता भी है. So I think वो भी realize करना ज़रूरी है that हर रिश्ते में space बहुत ज़रूरी है जो एक दूसरे को time to time देनी चाहिए. The space to breathe is very 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 important, and that is something that is crucial. You don't have to Overstep or you know joined by the suffocate. hip all the time in your words. हाँ. क्योंकि अल्टीमेटली रिलेशनशिप में पार्टनर को भी एक पॉइंट पे आके इनसिक्योर लगने लग जाता है, या फिर कि हमारे केस में तो पेरेंट्स को बीच में कितनी बारी वो लगा था. आफ्टर अ पॉइंट दे ऑफ कोर्स रियलाइज्ड कि अच्छा ये लोग ऐसे ही हैं, ये जो है, फिर वो एक्सेप्टेंस का बर्डन एक्चुअली हमने फिर अपने आपस की जगह दूसरों पे डाल दिया कि तुम हमें ऐसे एक्सेप्ट करना है तो करो, 1+1 ऑफर, वरना. हाँ. तो तेरे को इस दोस्ती का फ्यूचर क्या लगता है? See, obviously things are not going to be the same. Case in point, तेरे मेरे ऑफिसेज हमेशा सेम रोड पे नहीं रहेंगे, राइट? सो इट्स नॉट लाइक कि ऑफिस के बीच में बस सादिका मेरे पास 5 मिनट है, तेरे पास 5 मिनट है, चल टपरी पे मैगी खा के आते हैं. इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम एनी मोर. वी विल इवेंचुअली बी इन रिलेशनशिप्स, टाइम भी डिवाइड होगा. बट लाइक आई सेड, सिस्टर्स ऑलवेज कम थ्रू समहाउ, राइट? टुमारो इवन इफ यू वर टू मूव टू अनदर कंट्री, निभाना चाहो नीयत से निभ जाती है चीजें. सो माई मदर, दीज आर 4 sisters, two in India, 2 in the US, and all of them get on a conference call every fucking night without fail. They maintain their relationship no matter the distance, and that's what we're going to do as well. और करा है हमने. जब तू मिलान गई थी, ऑफ कोर्स वो 1 साल था, एंड भाई तब भी टाइम जोन्स अलग थे, बट तब भी मैनेज किया है. वो वाली चीज होती है कि यार फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितने टाइम जोन पे बैठा है, और वैसी वाली रिश्ता होना चाहिए कि फोन उठाया और कोई भी बात कहीं से भी कंटिन्यू करी और अगले इंसान को है पूरा कॉन्टेक्स्ट बात करने का, तुम्हें समझने का. तो आई थिंक वो चीजें होती हैं छोटी छोटी. Yeah, so I think it's all about will. Where there's will, there's way, and this shall go on. Yes. God willing. गॉड विलिंग. लोगों के लिए टॉक्सिक, हमारे लिए स्पेशल, मैजिकल. Yes. So yes.